हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी फर्स्ट की। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी एट द स्विमिंग पूल, फर्स्ट एड. Newspapers carry news of accidents almost every day. Accidents cause harm to life and property. They cause pain and suffering. Accidents can be avoided if we follow safety rules at home, at school, on the playground and on the road. Injuries at home are mostly caused by slipping on the floor, burns, electric shock and chemical poisoning. Make your home a safe place. Being aware and alert will go a long way in keeping you safe. तो बच्चों, आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में एक्सीडेंट की खबरें पढ़ते हैं। एक्सीडेंट से हमें तो नुकसान होता है, हमारे जीवन को तो नुकसान पहुंचता है, साथ ही साथ हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचता है। तो अगर हम कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करेंगे अपने जीवन में, खासकर घर में, स्कूल में, सड़क पर, हर जगह, तो हम ऐसे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। सेफ्टी एट होम: घर पर आपकी सुरक्षा कैसी होनी चाहिए? Accidents at home are mostly caused by falls, burns, electric shocks or poisoning. So, to avoid them, do not rush up or down the stairs. Do not play on your main gate containing iron spikes. You may hurt yourself. Keep your floors clean and dry. Put your toys and bags in their proper places. Do not go near a stove. Turn it off when the stove is not in use and lock the gas cylinder. Do not wear synthetic clothes in the kitchen because synthetic clothes catch fire very fast. बच्चों, घर में आपको किस तरह की सेफ्टी की ज़रूरत है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो सीढ़ियों पर भाग भाग के चढ़ने या उतरने की आपको आवश्यकता नहीं है। संभल कर सीढ़ियों पर चढ़ें या उतरें। कभी भी मेन गेट पर ना खेलें, उससे आपको आयरन रॉड से खासकर चोट लग सकती है, क्योंकि ज़्यादातर गेट आयरन से बने होते हैं। हमेशा अपने ज़मीन को, फ्लोर को साफ रखें और उसे सूखा रखें। अपने बैग्स और खिलौनों को सही जगह पर रखें। अगर आपका खाना बन चुका है किचन में, तो स्टोव को ज़बरदस्ती ना जलाकर रखें। हमेशा सिलेंडर का नॉब बंद करके रखें। खासकर जब आप किचन में काम कर रहे हैं, तो फिर किचन में कभी भी सिंथेटिक कपड़े पहन करके ना जाएं। इससे आग जो है आसानी से सिंथेटिक कपड़ों में लग सकती है। Handle all the electrical appliances with great care. For example, toasters, irons, heaters, coolers, table lamps, etc. Do not touch any wire or switch with wet hands and make sure that all the electrical appliances are in order and then there is no longer leakage in any wire. In case you get shock or you see a spark, turn off the main switch to avoid the current flow. Do not take any medicine without doctor's advice. Self-medication may lead to many problems. Keep the medicines away from the reach of the children. Do not burn crackers within the house and without your parents' help. बच्चों, जो भी घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको सही तरह से हैंडल कीजिए, जैसे कि टोस्टर्स, आयरन, हीटर्स, कूलर्स, टेबल लैम्प। और ख़ासकर जब आपके हाथ गीले हों, तो उस समय कभी भी किसी वायर को ना छुएं, इससे आपको करंट लग सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी जगह लीकेज हो रही है, कोई वायर में स्पार्क हो रहा है, तो घर का मेन स्विच सबसे पहले बंद करें। कभी भी डॉक्टर की परमिशन के बगैर किसी भी तरह की दवाइयाँ ना लें और हमेशा अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके रखें। और घर में बच्चे अगर हैं, तो बच्चों से दवाओं को दूर रखें। कभी भी अपने घर के अंदर पटाखे ना छुड़ाएं। एक्टिविटी: Arushi came home from school and found the door unlocked. She knew her parents were out. As she pushed open the door, she saw the house help carrying something across the room. The woman seemed alarmed, but quickly told Arushi to change and come for lunch. Arushi had doubts as the house help was not given a house key. So how could she have entered the house? With a strange feeling in her heart, Arushi moved towards her room. She knew something was not right,
बच्चों, आरुषि अपने घर जब स्कूल से लौट करके आती है तब देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर उसकी मेड होती है, क्योंकि आरुषि को पहले से पता होता है कि उसके पेरेंट्स घर में नहीं हैं। तो उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि जब पेरेंट्स उसके घर में नहीं है तो मेड को चाबी कैसे मिली और मेड अंदर कैसे जाती है। मेड जब आरुषि को देखती है तो वो अलर्ट हो जाती है और आरुषि से कहती है कि फ्रेश होकर के वो खाना खाने के लिए आए। अब जो है इस कहानी को आगे आप कंप्लीट करेंगे। Work in groups and complete the story by making it as interesting as you can. Narrate how Arushi could have kept herself and the belongings in her house safe by being smart. Safety at school. स्कूल में आपको कैसे सेफ रहना है? In schools, many accidents happen when children are in haste. They should follow simple safety rules at school. Do not run about and play in the classroom. Do not jump over desks or tables. कभी भी टेबल और डेस्क पर ना कूदें। हमेशा सीढ़ियाँ उतरते और चढ़ते समय ध्यान रखें और कभी भी लोगों को धक्का मुक्की ना दें, वरना आप भी गिर सकते हैं और जो आपके साथ हैं उन्हें भी चोट आ सकती है। कभी भी क्लासरूम में गंदगी ना फेंकें। सेफ्टी ऑन द ग्राउंड। Follow the rules of the game while playing. Wait for your turn at rides. हमेशा प्लेग्राउंड में सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें और जब भी गेम खेलें तो हमेशा अपने टर्न का इंतज़ार करें। Do not go very high on the swings as you may fall off. Do not push or hit each other while playing. Do not play rough games. बच्चों, जब भी आप झूला झूलते हैं तो कभी ज़्यादा ऊंचाई पर ना जाएं, उससे आप गिर सकते हैं। कभी भी अपने साथ वालों को पुश ना करें, चोट ना पहुंचाएं और हमेशा रफ गेम्स खेलने से बचें। सेफ्टी ऑन द रोड। सड़क पर आपको किस तरह की सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए? Most accidents on the road are the result of careless driving and carelessness of pedestrians. We should follow these safety rules on the road. सड़कों पर जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर गाड़ी चलाने वालों की केयरलेसनेस से होता है या फिर जो साइड में पैदल चल रहे होते हैं लोग, उनकी वजह से होता है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे सेफ्टी रूल्स को आपको उन्हें फॉलो करना है। Always walk on the footpath. Always cross the road at a zebra crossing. When there is no zebra crossing, look first to your right, then left, and then to your right again. When no vehicle is coming, then cross the road. Never cross a road behind a parked vehicle. जब भी आप सड़क पार करें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही करें। अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहाँ पर तो पहले दाएं देखें, फिर बाएं देखें और दोबारा फिर से दाएं तरफ देखें और जब कोई गाड़ी ना आ रही हो तब आप सड़क पार करें। और हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई व्हीकल पहले से पार्क्ड है तो पार्क्ड व्हीकल के पीछे से कभी भी सड़क पार करने की कोशिश ना करें। सेफ्टी एट द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में आपको किस तरह की सेफ्टी की ज़रूरत है? स्टे एट द शैलो एंड ऑफ द स्विमिंग पूल। यूज अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट। डू नॉट जंप इनटू द पूल अनलेस यू नो हाउ टू स्विम वेल। बच्चों, हमेशा शैलो वाटर के किनारे ही स्विमिंग करें, ज़्यादा गहरे पानी में ना जाएं। हमेशा जब भी आप स्विमिंग करें तो ट्यूब का इस्तेमाल करें, यानी कि स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल करें और पानी में तब तक ना तैरने की कोशिश करें जब तक कि आप काफ़ी एक्सपर्ट ना हो। और जब भी तैरें तो हमेशा अपने पेरेंट्स या फिर किसी बड़े की मौजूदगी में ही स्विमिंग करें। कभी भी पूल में इसी तरह से ना जंप करें जब तक कि आपको ठीक से स्विमिंग ना आती हो। फर्स्ट एड। An injured person needs to be given help as soon as possible. The immediate or first help given to an injured person before a doctor arrives is called first aid. फर्स्ट एड का मतलब होता है जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर के आने से पहले जो भी हम पॉसिबल चीज़ें होती हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको फर्स्ट इलाज देने के लिए, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। While giving first aid to an injured person, we should
Comfort the injured person, not crowd around him. Make the victim lie down and make him comfortable. Loosen the victim's clothes. बच्चों, जब आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे होते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले तो जिसको चोट लगी है उसको आप कंफर्टेबल फील कराइए। कभी भी उसके आसपास भीड़ भाड़ मत लगाइए और उसको ठीक से आसानी से पहले ज़मीन पर लेटाइए और उसके कपड़ों को ढीला कीजिए। The type of first aid required depends on the type of injury. फर्स्ट एड डिपेंड करता है कि इंजरी यानी कि चोट किस तरह की लगी है। Infobit, trained people called paramedics can take care of injured person. They are like doctors. इंजर्ड पर्सन को ठीक करने के लिए कुछ ट्रेंड लोग होते हैं जिनको हम पैरामेडिक्स कहते हैं। पैरामेडिक्स देखने में डॉक्टर जैसे ही आपको लगेंगे। फर्स्ट एड टिप्स फॉर ब्लीडिंग वाउंड्स। Wash the wound with water to remove the dirt. Wipe the area around the wound with cotton dipped in an antiseptic lotion. Press the wound firmly using a cotton pad to control the bleeding. Tie a tight bandage over the wound. बच्चों, अगर किसी को जख्म हो गया है, अगर उसके जख्मों से खून बह रहा है तो सबसे पहले उसके जख्म पर से आपको साफ सुथरे पानी से उसको क्लीन करना होगा, जिसमें कि आप एंटीसेप्टिक लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर खून बहुत ज़्यादा बह रहा है तो फिर एक कॉटन पैड लेकर के उसके बॉडी पर रख दीजिए जहाँ से खून निकल रहा है, तो उससे वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। और बाद में एक टाइट सा बैंडेज उसके जख्म के आसपास बांध दें। इफ़ अ पर्सन हैज़ फेंटेड, अगर कोई बेहोश हो गया है तो फिर आपको क्या करना है? मेक हिम लाई डाउन विद his head lower than the body so that the supply of blood to the brain increases. अगर कोई बेहोश होता है तो पहले आप उसको लिटा दीजिए और उसका हेड डाउन कर दीजिए ताकि ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक ईजिली पहुंच सके और ब्लड की सप्लाई बढ़ सके। फॉर बर्न्स, इफ अ बर्न इज माइनर, वॉश द बर्न्ट एरिया विथ कोल्ड रनिंग वाटर. Put an ice pack on the burnt area, then apply an antiseptic cream on the affected area. बच्चों, अगर कोई जल जाता है और उसकी बर्निंग अभी माइनर है, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, तो आप उस पार्ट को पहले तो ठंडे पानी से साफ़ करें। ठंडे पानी के बाद आप उसके ऊपर आइस पैक रखें और जब उसको आराम मिल जाए तो उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगा दें। फॉर इलेक्ट्रिकल शॉक्स, if someone has had an electrical shock, switch off the electrical current at the mains to break the contact between the person and the electrical supply. If you can't reach the main supply, do not go near or touch the person until you are sure the electrical supply has been switched off. बच्चों, अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तब आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। ऐसे में अगर किसी को करंट लग जाता है तो सबसे पहले पावर सप्लाई का जो मेन स्विच है उसको बंद कर दें और उस पर्सन को कभी भी हाथ ना लगाएं जब तक कि आप श्योर ना हो गए हो कि मेन स्विच बंद कर दिया गया है। फॉर इंसेक्ट बाइट्स, अगर किसी को कोई इंसेक्ट काट लेता है तो आइए जानते हैं क्या करना है। इंसेक्ट बाइट्स कैन समथिंग बी वेरी पेनफुल एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट. टू गिव रिलीफ टू अ victim of insect bite, apply a paste of baking soda and antiseptic cream in case of bee stings. Calamine lotion helps to reduce itching. Ice can also be applied over the affected area. बच्चों, इंसेक्ट बाइट में अगर खासकर किसी को मधुमक्खी ने काट लिया है तो ऐसे में उस अफेक्टेड एरिया पर आप बेकिंग सोडा का पेस्ट बना करके लगाएंगे और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे। अगर इचिंग हो रही है तो आप इचिंग में कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं और या तो फिर आप बर्फ भी अप्लाई कर सकते हैं। For insect bite, people may get bitten by insects. Some insects stings or bites are very painful and cause swelling. The following treatments should be given to give relief. Wash the affected spot with lime water or apply ammonia solution over it. Place ice over the affected spot. बच्चों, कुछ इंसेक्ट बाइट इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि वो हमारी बॉडी में स्वेलिंग तक ले आते हैं, हमारी बॉडी स्वेल हो जाती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। लाइम वाटर यानी कि नींबू का पानी या फिर अमोनिया सॉल्यूशन आप अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर आप उस पर बर्फ भी रब कर सकते हैं। फॉर पॉइजनिंग, इन केस ऑफ food poisoning, try to make the person throw up. If it is poisoning through snake bite, immediately tie a very tight bandage above and below the wound. Let the blood flow out. This way you will stop poisonous blood from circulating in the bloodstream. Always carry a first aid box with you when you go out on picnics or trips with your classmates or parents. अब बात करते हैं पॉइजनिंग की। खासकर अगर किसी को स्नेक बाइट होता है, यानी कि सांप काट लेता है, तो ऐसे में आप उसके जो अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर और नीचे कस के पट्टी बांध दें। जब आप इससे पट्टी बांधेंगे तो जो पॉइजनस ब्लड है वो बाहर आ जाएगा और उस मनुष्य की बॉडी में मज़ीद जहर फैलने से रोका जा सकता है। जब भी आप बाहर निकलें या पिकनिक पर जाएं, ट्रिप्स पर जाएं, टूर्स पर जाएं, हमेशा अपने साथ एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर लेकर चलें। Every home should have a first aid box in case someone gets hurt. Prepare a box that contains band-aids, sticky tapes, plastic gloves, cotton, safety pins, a thermometer, bandages, scissors, a small torch, gauze pads, tweezers. बच्चों, हर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है जिसमें कि बैंडेड, टेप, प्लास्टिक के ग्लव्स, रुई, सेफ्टी पिंस, थर्मोमीटर, बैंडेज, कैंची, छोटा सा टॉर्च, गॉज पैड्स यानी पट्टियाँ और ट्विजर्स मौजूद होने चाहिए। ऑल्सो हैव सम मेडिसिन्स, और साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखें, जैसे एंटीसेप्टिक यानी डेटॉल और सेवलॉन, एंटीबायोटिक क्रीम जैसे कि न्यूरोस्पोरिन, पेन किलर्स फॉर एग्जाम्पल इबुप्रोफेन, कफ मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल बेनेड्री। टर्म्स टू रिमेंबर: गॉज, थिन नेट लाइक फैब्रिक यूज टू कवर वाउंड्स, यानी कि पतली पट्टी जो जिससे कि हम वाउंड्स को कवर करते हैं। सेफ्टी, अ वे टू रिमेन सेफ, हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखने का तरीका। फुटपाथ, पाथ ऑन द साइड ऑफ द रोड फॉर वॉकिंग, सड़क के किनारे जो एरिया होता है जिस पर हम वॉक करते हैं उसको हम फुटपाथ कहते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग, द ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स मार्किंग अ पाथ ऑन रोड्स, जेब्रा क्रॉसिंग वो होता है जो कि व्हाइट और ब्लैक कलर में होता है जिसकी मदद से लोग सड़क पार करते हैं। नाउ आई नो accidents can be avoided by being a little more careful. At home, do not run on the wet floor or in a room with furniture. In the bathroom, take care that the floor is dry and there is no shampoo or soap on the floor. In the kitchen, do not play with matchsticks, gas stove or knives. At school, do not run on the stairs or slide on the banister. Be careful while crossing the road. Always walk on the pavement. Observe safety rules in the playground and swimming pool. हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, खासकर खेल के मैदान में और स्विमिंग पूल में। हर तरह की इंजरीज के लिए यानी कि हर प्रकार की चोट के लिए अलग अलग फर्स्ट एड होती है। हमेशा अपने घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार रखें। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करें।